my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to study about the spherical mirrors. पिछली बार हम लोगों ने प्लेन मिरर्स को देखा, कैसे इमेज फॉर्म होती है वो देखा, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखा, राइट. Now this time we are going to see the spherical mirrors. But basically पहले हम थोड़ा बहुत प्लेन मिरर भी देखेंगे. हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो फैक्ट्स हैं और आपको पता होना चाहिए, ठीक है. एंड देन वी विल बी लर्निंग अबाउट कि जब हम दो प्लेन मिरर्स को किसी एक एंगल पे रख देते हैं तब कितनी इमेजेस बनती हैं, ठीक है. जैसे कि हमने सर्कस में देखा होगा, तो सर्कस में क्या होता है, एक मिरर रूम होता है, तो उसके अंदर ऐसे कैसे बहुत सारी इमेजेस बनती हैं. वी विल बी वॉचिंग दैट हाउ दैट हैपन्स, ऑलराइट. एंड देन उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे, ठीक है. एंड देन वी विल बी एंडिंग द लेक्चर, ठीक है. तो इन सब चीज़ों में आज का जो मेन फीचर है वो ये है, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स, ऑलराइट. ये जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं, दिस इज टोटली बेनिफिटेड. अगर आप देखें तो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी और ओलंपियाड्स के लिए भी. सो इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट स्टडिंग, यू कैन डेफिनेटली वॉच दीज वीडियो लेक्चर्स, learn from these and crack the examination you wanna aim for, right? If you want DPPN study material, you can access them through a Telegram channel. You have to write the code. Which code? TTB08. So if you write the TTB08 in the search box of the Telegram app, then only you are going to get the drop down list of our class 8 channel. You can join that channel and you can access all the DPPs and study material along with the notifications of the videos जो कि अभी present में चल रहे हैं and the past videos too. Alright, so that will be so good, right? You will be getting all the things at the same place and the links and the same plane basically. Alright, and next I will be telling you to focusing on this team. So basically this is the team which is going to help you a lot, and actually we as a whole team making this sure that we do provide the quality lectures to you all and make sure that what we are doing should be beneficial to you. We are providing these lectures, we are making sure that you crack those examination, all the necessary information you need to crack the examination, we are trying to give you that, alright. And these video lectures are free for everyone, so make sure that you do watch these video lectures and also you share these video lectures with your friends, family members and the peoples whoever you know, alright. So if you do so, अगर किसी बच्चे को जैसे कि जो अफोर्ड नहीं करता है क्वालिटी एजुकेशन को, नहीं कर पाता है, उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, so they can definitely study from these free video lectures and you can definitely access all the things, all the knowledge, all the quality knowledge they need to understand, alright. And that would be a good cause, alright. So start sharing these video lectures, alright. That would be so much good for everybody, alright. Now see, let me tell you the next thing is this. Along with those free video lectures, we have also provided the important things also. Free video lectures, alright, that would be the thing which is free for everyone, anybody can benefit it from them. Also you can attempt the bi-weekly quizzes on our website www.talkingtextbooks.in. So if you go on this website, you will be getting the things whatever you need to know, right, and I'll be telling you right now. But before that, if you are really serious, you can definitely attempt the bi-weekly quizzes on the website. Alright, so basically वेबसाइट पे आप बाई-वीकली क्विजेस तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट साथ ही साथ में मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि वेबसाइट के ऊपर ही 2 टाइप ऑफ पैकेजेस हम लोगों ने बनाए हुए हैं. यू कैन डेफिनेटली गेट दैट फॉर एवरी क्लास, ऑलराइट. तो मतलब 2 टाइप ऑफ पैकेजेस फॉर एवरी क्लास आर फॉर देयर, राइट. नाउ व्हाट यू विल बी गेटिंग इन दोज पैकेजेस, number 1 is the full package, alright. So full means like you will be getting the everything you need to crack any examination. Studying part, that means whole study material, comprehensive study material, you will be getting that, right. Before that उसके अलावा भी ये देखो recorded and live classes, these are the must thing also, है ना. second thing है, ये भी studying part में आती है. होमवर्क सबमिशन फीचर तुम्हारे पार्ट पे आती है, दैट यू विल बी डूइंग दी होमवर्क, यू विल बी गेटिंग लाइक डाउट्स एंड यू विल बी सॉल्विंग ऑल दोज क्वेश्चन योरसेल्फ, यू आर गोइंग थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द कंसेप्ट्स योरसेल्फ, ऑलराइट. नेक्स्ट यू कैन सी द bi-weekly quizzes, you are going to get quizzes twice a week. So basically you study a lecture, you get the quiz, then you again study a lecture, you get the quiz, right, that, ठीक है.
उसके बाद आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेस्ट पेपर. सो बेसिकली ये पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स विल बी डेफिनेटली टेलिंग यू हाउ यू कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन बेसिकली, बिकॉज दे विल बी टेलिंग यू द प्रॉपर पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन. व्हाट आर द क्वेश्चंस जो कि लेवल के होते हैं, राइट? आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चंस आपको करना चाहिए, कितने नहीं करना चाहिए, लाइक फिजिक्स के कितने आने वाले हैं, केमिस्ट्री के कितने आने वाले हैं, लेवल क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं. सो बेसिकली यू विल बी गेटिंग फैमिलियर विद द पेपर पैटर्न, ऑलराइट, एंड दैट विल बी अ गुड स्टेप ऑल्सो. क्योंकि देखो जब किसी बच्चे को जैसे सब कुछ पढ़ लिया किसी बच्चे ने, बस वो पेपर पैटर्न से फैमिलियर ही नहीं है, तो उसके चांसेस अच्छे रैंक लाने के बहुत कम हो जाते हैं. So that is why I'll be telling you that you should definitely go for the periodic test papers. Alright, तो ये तो था full package जिसमें सब कुछ included है, right? Studying part है, ठीक है, homework part है, testing part है, right? But if you want only the test series, then you can definitely get that. Alright, so the testing part, so you will be getting the periodic test papers, recorded live classes and bi-weekly quizzes. So you can join that. If you are interested in buying them, you can use my code CYLIFE to get the 30% discount, and it will be so good. Because देखो discount तो सभी को पसंद होता है, तो make sure you get benefited from these discount. Make sure you buy them. And ठीक है, कोई बच्चे नहीं भी buy करना चाहते, but they want to know more about these, that how these things will be helping you a lot. Right? So you can call us on the number 919549041111. If you call us, all your queries will be resolved. जितनी भी बातें हैं, जितने भी doubts हैं, वो सब clear हो जाएंगी. That would be so good. Alright? चलिए, promise time आ चुका है. So promise yourself, you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. So you will be revising on a daily basis. That is the must part. देखो अभी हम 7th chapter पे हैं, अभी हमारा 8, 9, 10 बच्चे हैं, right? बट बिफोर दैट अगर हम उनको पढ़ेंगे और पीछे की सब चीज़ें भूल जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का, राइट? दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगैन, डू नॉट फॉरगेट दैट. एंड हाउ यू मेक श्योर दैट यू नॉट फॉरगेट दैम? बाय रिवाइजिंग. मेक श्योर यू रिवाइज अगैन एंड अगैन. दैट वुड बी सो मच गुड फॉर यू, ऑलराइट? दैट इज़ वाई आई एम सेइंग इट अगैन एंड अगैन. रिवाइज, रिवाइज, रिवाइज. Let's get started. This is the lecture 3rd, reflection of light from the spherical mirror. ठीक है, we are going to get that spherical mirror. ठीक है, तो देखो क्या क्या हम लोग आज की जो सब टॉपिक्स हैं स्पेसिफिकली वो सीखने वाले हैं. इमेज फॉर्मेशन बाय 2 प्लेन मिरर्स, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. सो बेसिकली आज का पूरा लेक्चर तो स्फेरिकल मिरर्स को ही जाता है, बट थोड़ा बहुत हम लोग प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे. ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं तुम्हें बताना चाहती थी, टॉपिक्स तो नहीं है बट फैक्ट्स हैं जो तुम्हें प्लेन मिरर के बारे में पता होने चाहिए, ठीक है? और इस टाइम तक तो काफ़ी हद तक तुम्हें पता होना चाहिए. जैसे पहला फैक्ट क्या है कि तुम्हें मिनिमम कितने साइज का मिरर चाहिए कि तुम अपना फुल साइज देख सको, ठीक है? तो मतलब द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर यू नीड सो दैट यू कैन वॉच योर फुल इमेज, मतलब तुम अपने पूरा का पूरा इमेज देख पाओ. ये एक फैक्ट है. सो लेट मी टेल यू कैसे और कितना. सो देखो, मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ अ पर्सन इज एट लीस्ट हाफ ऑफ इट्स ओन हाइट. तो लेट्स से इमेजिन कि आपकी हाइट है 6 फीट, ठीक है? अभी हुई नहीं होगी बट मे बी इम्पॉसिबल, हो सकता है फ्यूचर में तुम्हारी हाइट इतनी हो जाए, ठीक है? तो इमेजिन दैट देयर इज अ पर्सन ऑफ 6 फीट. अब 6 फीट के पर्सन को प्लेन मिरर के अंदर अपनी पूरी इमेज देखनी है और हम मिनिमम से मिनिमम साइज चाहिए हमें, ठीक है? तो अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, अपनी पूरी फुल हाइट की इमेज देखने के लिए जो मिनिमम साइज चाहिए प्लेन मिरर का, वो क्या होना चाहिए? दैट इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द मैन. तो अगर वो 6 फीट का मैन है और 3 फीट का अगर वो प्लेन मिरर यूज करता है, देन ही इज एबल टू सी हिज ओन फुल इमेज, ठीक है? दैट इज द मिनिमम थिंग, ठीक है? 3 फीट मिनिमम होना चाहिए प्लेन मिरर का. अब यहाँ देखो कैसे तुम्हें हेल्प मिलेगी, कैसे हम ऐसा कर पाते हैं. देखो ये जो लड़की है, ठीक है, ये क्या करती है, ये इस पॉइंट को देख पाती है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट को देख पाती है, राइट? ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका मतलब वो उसके हेड से आती हुई लाइट है, तो शी कैन वॉच हर हेड, राइट? शी कैन वॉच हर हेड. अब आप देख सकते हो ये जो आंखें हैं, द लाइट रेज विच आर गोइंग फ्रॉम द टोज मिरर तक जा रही है, टोज से लाइट मिरर तक जा रही है, रिफ्लेक्ट होके लड़की के आंखों तक जा रही है, ठीक है? ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसे हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, वी विल बी गेटिंग द इमेज ऑफ द टोज टू,
राइट। सो बेसिकली ये जो लड़की है ये अपना पूरा इमेज देख पाएगी जस्ट यूजिंग दिस ऑफ मच ऑफ द मिरर। सो बेसिकली इफ अ पर्सन वांट्स टू सी हिज होल इमेज देन ही शुड यूज अ प्लेन मिरर हाफ ऑफ इट्स ओन हाइट। ठीक है, सो अब तो तुम्हें पता है तुम्हें कितना मिनिमम चाहिए प्लेन मिरर कि तुम अपना फुल लेंथ देख पाओ। ऑलराइट, चलो अभी सेकेंड तुम्हें बताती हूँ मैं। इफ object moves with a speed v towards mirror then image moves with a speed 2v towards the mirror with respect to him। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो मिरर से एक पर्सन v से आ रहा है, लेट मी टेल यू यूजिंग दी डायग्राम। ठीक है, तो मैं तुम्हें डायग्राम से बताती हूँ, लेट मी। अब देखो लेट्स से दिस इज द मिरर। ठीक है, ये मैंने प्लेन मिरर बना दिया। यहां से कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो v वेलोसिटी से भाग के मिरर की तरफ जा रहा है। ठीक है, v वेलोसिटी से भाग के मिरर की तरफ जा रहा है। तो इसी आदमी को अपनी जो इमेज है वो कितने से दिखाई देगी, इस आदमी को खुद की इमेज कितनी वेलोसिटी से दिखाई देगी, वो कैसे दिखाई देगी। देखो अगर ये v से जा रहा है तो इसकी जो इमेज होगी वो भी v से ही जाएगी मिरर की तरफ, बिल्कुल एज इट इज होगा। ठीक है, तो देखो इस आदमी के लिए जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी होनी चाहिए, v माइनस का v, डायरेक्शन अपोजिट है ना, एक प्लस डायरेक्शन में है एक नेगेटिव डायरेक्शन में है, सो यू आर गोइंग टू गेट 2v। तो मतलब इस आदमी को अगर तुम, चलो ठीक है मैं तुम्हें एग्जाम्पल भी देती हूँ, साथ ही साथ नंबर्स में हम बातें कर लेते हैं। तो लेट्स इमेजिन कि तुम क्या कर रहे हो, एक बड़े से प्लेन मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हो। ठीक है, भाग रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहे हो मिरर की तरफ, और तुम मिरर की तरफ भाग रहे हो तो तुम अपनी इमेज देख सकते हो, तुम्हारी इमेज भी तुम्हारे तरफ आ रही होगी, मतलब मिरर की तरफ आ रही होगी क्योंकि तुम भी मिरर की तरफ जा रहे हो। राइट, तो तुम्हारी इमेज क्या करेगी, तुम्हारी इमेज भी v वेलोसिटी से भागेगी, तुम भी v वेलोसिटी से भागोगे, लेकिन तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हारी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी वेलोसिटी इमेज को मिल जाएगी। तो इमेज तुम्हें ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी से दिखाई देगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल होता है, जैसे हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी, वो हमने क्या पढ़ी थी कि जब हम ट्रेन में जा रहे होते हैं, ठीक है, तो हम हमारी वेलोसिटी को नहीं देख पाते कि हम कितनी तेजी से जा रहे हैं, हमें तो ये दिखता है कि ये जो साइड वाले पेड़ है वो कितनी तेजी से पीछे जा रहे हैं। एग्जैक्टली, पर ऐसा तो नहीं है कि हम मूव नहीं कर रहे, हम तो मूव करते हैं ना। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ जब ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मिरर की तरफ भाग रहा है, इमेज भी इसे अपने तरफ आते हुए दिखाई देगी। राइट, और ये जो इमेज इसे अपनी तरफ आते दिखाई देगी वो एक्चुअली खुद की प्लस इमेज की इन दोनों वेलोसिटीज का ऐड उसको दिखाई देगा कि भाई वो तो 2v से तुम्हारे पास आ रही है। ठीक है, ऐसा होता है फैक्ट, जो कि हमें प्लेन मिरर का पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, if mirror moves with the speed of v towards stationary object then image moves with speed 2v towards mirror with respect to him। so basically यहाँ पे देखो जब कभी भी क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह पे मिरर को भेजे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पे मिरर को मूव करवाया, मिरर बहुत तेजी से v वेलोसिटी से जा रहा है, तो भी क्या होगा, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा कि भाई इमेज जो है वो 2v से जा रही है बेसिकली टूवर्ड्स दी हिम, टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट बेसिकली। ठीक है, अगला देखो, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि मतलब जो भी लाइट रेज मिरर के ऊपर फॉल होती हैं वो सारी की सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट द इन्फिनिटी। सो बेसिकली वी से दैट फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज 0। हमेशा याद रखना पावर ऑफ द प्लेन मिरर इज 0। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो तुम्हें पता होने चाहिए थे, फटाफट से नोट कर लो, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जब कभी हम प्लेन मिरर को, 2 प्लेन मिरर ले लिया हमने, और उन 2 प्लेन मिरर को किसी एंगल पे जब हम रखते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से इमेज बनती है, कितनी इमेजेस बनती हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। सो place 2 plane mirrors vertically along their edges so that they make a certain angle between each other, just like this. You can see this is the plane mirror 1,
दिस इज द प्लेन मिरर 2 एंड दे आर कैप्ड एट सम एंगल, किसी एक एंगल पे रख दिया है हमने, ठीक है, प्लेन मिरर है और एजेस से है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट, नाउ प्लेस एन ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली बिटवीन दीज टू मिरर्स। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक लेटर को कॉपी में लिख के रख दिया है भाई, आर लेटर रख दिया, सो दिस लेटर इज एक्चुअली सिमेट्रिकली बिटवीन दीज प्लेन मिरर्स, मतलब बिल्कुल बीचों बीच, सिमेट्रिकली बिटवीन, ठीक है। तो हमने बिल्कुल बीचों बीच इस ऑब्जेक्ट को रख दिया है। यू विल ऑब्जर्व दैट मोर देन 2 इमेजेस आर फॉर्म, तुम्हें पता चलेगा कि भाई 2 से ज्यादा इमेजेस बनी, डेफिनेट सी बात है। यू कैन सी हियर, एक तो ये बन गई इस आर की इमेज, एक ये बन गई इस आर की इमेज, और यू आर गेटिंग अगेन अ थर्ड इमेज ऑल्सो, जो कि बिल्कुल एज पे आपको दिखाई दे रही है, दोनों मिरर्स के एज पे दिखाई दे रही है। सो यू आर गेटिंग मोर देन 2 इमेजेस, 2 प्लेन मिरर थे, 2 इमेजेस बननी चाहिए थी, बट एक्चुअली में यू आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड होगा, इट इज बिकॉज द इमेज इन वन मिरर विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड मिरर। क्यों हुआ ऐसा भाई, ये एक मिरर था, ये एक मिरर था, तो एक मिरर की जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये वाली जो इमेज है ये तो इसी ऑब्जेक्ट की बनी, ठीक है, लेकिन इस मिरर के लिए ये वाली जो है ना इमेज, ये वाली जो इमेज है ये भी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सो बेसिकली ये वाला मिरर क्या इमेजेस बना रहा है, ये वाला प्लेन मिरर ये दोनों की इमेजेस बना रहा है, ठीक है। तो ये रहा वो आधा आर और ये रहा वो पूरा आर, ठीक है। वहीं पर ये वाला जो प्लेन मिरर है, सेकेंड वाला जो प्लेन मिरर है, वो इन दोनों की इमेज बना रहा है, ठीक है, इन दोनों की इमेज इन दोनों की इमेज बना रहा है, ठीक है, बेसिकली दिस ऑब्जेक्ट एंड द इमेज ऑफ द फर्स्ट मिरर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर 2 इमेजेस बन गई। जो आधी वाली इमेज है ना, ये एक्चुअली ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो लेट मी चूज द पेन हियर, इधर देखो, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ये है मेन लाइन फिजिकल और ये है मिरर के अंदर की लाइन, ठीक है। अब देखो ये इस फर्स्ट वाले मिरर के लिए क्या हो रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसने ये वाली इमेज तो यहाँ बना दी, इस वाली इमेज को यहाँ बना रहा है वो, ठीक है। तो ये जो आर वाला आधा पार्ट है वो इसे यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। सेकेंड टाइम में इस वाले मिरर के लिए, सेकेंड मिरर के लिए कौन वो है, वो ये है। इस मिरर के लिए, सेकेंड मिरर के लिए ये किसकी इमेज बना रहा है, ये इन दोनों की इमेज बना रहा है। एक तो रियल ऑब्जेक्ट का, उसका इमेज बना दिया, पर इस इमेज का भी इमेज बनाता है वो। तो यू आर गोइंग टू गेट दिस मच। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इस जगह पे, इस पोर्शन पे क्या होगा, ये वाला जो मिरर है वो भी इमेज बनाएगा, ये वाला मिरर है वो भी इमेज बनाएगा। सो बेसिकली यू कैन गेट दिस आर हियर, ये एक्चुअली एक ही इमेज के ऊपर दूसरी इमेज बन गई है। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट द ओवरलैपिंग ऑफ द इमेज, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू गेट 3 इमेजेस, क्योंकि एक जो मिरर है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की इमेज तो बना रहा है और दूसरे मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है उसकी भी इमेज बना रहा है। तो बेसिकली वो ज्यादा इमेजेस बना रहा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे आपको मोर देन 1 इमेजेस मिलती हैं व्हेनेवर यू कीप द प्लेन मिरर्स लाइक दिस, ऑलराइट। नेक्स्ट देखो, इसी वजह से आपको हर बार एक्चुअल रिफ्लेक्शन की वजह से यू विल बी गेटिंग दी मल्टीपल इमेजेस ओवर हेयर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं देख लेते हैं। Thus besides the image formed in each mirror due to actual reflection of the object, image of the images will also be seen। मतलब इमेज की भी इमेज दिखाई देती है। You can see here, ऑब्जेक्ट की इमेज तो है ही है, बट उस इमेज की इमेज भी है, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग हियर, यहाँ पे तुम्हें समझना ज्यादा जरूरी है। If the mirrors are placed in such a manner that they make a 90-degree angle with each other, then you will observe 3 images shown in the figure. So basically, if you definitely make sure कि भाई दोनों के दोनों mirrors 90 डिग्री पे तुमने रख दिए तो तुम्हें 3 images मिलेंगी, ठीक है। And I'll be telling you the formula for that ताकि तुम खुद से calculate कर सको, ठीक है। But before that, note this down and then we will be using the formula. चलो अभी हम देखते हैं कि भाई कितनी इमेजेस मिलेगी। अब तुम यहाँ देखो, इस छोटी सी कैट की, इट्स अ मिनिएचर टॉय कैट है, ठीक है।
तो ये जो छोटा सा टॉय कैट है इसकी कितनी इमेजेस तुम्हें दिख रही हैं? 1 2 3 4 इमेजेस दिख रही हैं, राइट? और ये जो 2 प्लेन मिरर्स है, मतलब 2 प्लेन मिरर्स 4 इमेजेस बना रहे हैं, तो मतलब कैसे बन रहा होगा? कैसे कैसे कैसे? देखो 1 2, ये वाला जो मिरर है ना, ये वाला मिरर ये इन दोनों की इमेज बनाता है, ठीक है? मैंने बताया था ना, फर्स्ट मिरर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट की भी इमेज बनाएगा और जो सेकेंड मिरर के अंदर इमेज है उसकी भी इमेज बनाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो मिरर है, सेकेंड मिरर, वो क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट की भी इमेज बनाएगा और इसके अंदर, मिरर के अंदर ये जो इमेज है उसकी भी इमेज बनाएगा, ठीक है? तो मतलब इमेजेस की भी इमेज बनती है, इसी वजह से यू आर गेटिंग मल्टीपल इमेजेस, ठीक है? तो मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ हाउ यू कैन गेट दैट कि भाई कितनी नंबर ऑफ इमेजेस तुम्हें मिलने वाली हैं, कब मिलने वाली हैं, ठीक है? सो दिस इज द केस फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा नहीं, थीटा तो तुम्हें पहले से पता होगा, ठीक है? लेट मी टेल यू व्हाट इज द एक्चुअल थिंग। देखो, इफ 360 डिग्री बाय थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू इवन, ठीक है? तुम्हें कोई इवन नंबर मिल जाए, है ना? ये थीटा क्या है? थीटा मैं बता दूं, where theta is angle between 2 plane mirrors, ठीक है? 2 प्लेन मिरर के अंदर, 2 प्लेन मिरर के बीच में कितना एंगल है, दैट इज थीटा, ठीक है? तो अब तुम देखो, अगर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा जो है वो अगर तुम्हें इवन नंबर मिले, जैसे तुम्हें मिलता है, जैसे तुम्हें कैसे मिलता है इवन नंबर, तुम्हें कैसे मिलने वाला है 90 डिग्री पे जैसे, ठीक है? तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90, तो यू विल बी गेटिंग 4, दैट इज इवन, राइट? तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है, इफ यू आर गेटिंग 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, एक ऐसा इवन वैल्यू मिलता है, ठीक है? तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? देन नंबर ऑफ इमेजेस will be equal to 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस का 1, ये होगा नंबर ऑफ इमेजेस। एग्जाम्पल बता दूं? चलो ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक, ठीक है? क्वेश्चन देख लेते हैं, अगेन मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन। देखो, इफ 2 प्लेन मिरर्स are kept at 60 डिग्री, ठीक है? क्या किया गया? 2 प्लेन मिरर्स को 60 डिग्री पे प्लेस कर दिया, ठीक है? 60 डिग्री पे उनका बीच में उनका एंगल 60 डिग्री बना दिया, ठीक है? देन कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है? कितनी इमेजेस बनने वाली हैं, ठीक है? अब देखो सोल्यूशन कैसे करोगे तुम, सोल्यूशन कैसे करोगे मैंने तुम्हें बता दिया ऊपर का केस। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एंगल तुम्हें दिया हुआ है, थीटा तुम्हें दिया हुआ है, क्या करोगे? 360 डिग्री को डिवाइड कर दोगे। तो फर्स्ट यू विल बी कैलकुलेटिंग 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, और यहाँ पे क्या है? थीटा बराबर 60 डिग्री है। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, ठीक है? 60 से देखो 0 से 0 कैंसिल एंड 6 6 36, सो यू विल बी गेटिंग 6। ये देखो, ये जो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा है, ये कितना आ रहा है? 6। इज इट इवन? यस इट इज इवन, 6 नंबर इज द इवन। सो कितनी इमेजेस मिलनी चाहिए? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलनी चाहिए? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस का 1, तो मतलब 360 डिग्री डिवाइडेड बाय का थीटा, इसमें से हम माइनस 1 कर देंगे। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर, तुम्हें क्या मिलने वाला है? नंबर ऑफ इमेजेस हियर 6 minus 1 equals to 5, तो तुम्हें मिलेंगी 5 इमेजेस, ठीक है?
तुम्हें कितनी इमेजेस मिलेंगी? 5 इमेजेस मिलेंगी। इसका मतलब जब कभी भी दो मिरर्स को तुम 60 डिग्री पे रख दोगे तो तुम्हें 5 इमेजेस मिलने वाली हैं, ठीक है, यू कैन गेट दैट। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। इस केस को तुम फटाफट से नोट करो कि भाई जब जब तुम्हारा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होती हैं? नंबर ऑफ इमेजेस यानी कि n हियर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस का 1, ठीक है, इतनी इमेजेस तुम्हें मिलेंगी, ठीक है, इसे नोट करो। देन हम केस सेकेंड जो है स्टडी करेंगे। चलो, है ना, अब हम केस 2 पढ़ते हैं। तो केस 2 के लिए देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। केस 2 में क्या होगा? ऑड का केस होगा, ठीक है। केस 2 में देखो, अगर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा तुम्हें क्या मिले? ऑड मिले, ठीक है। अगर तुम्हें 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा ऑड मिल जाए तो तुम क्या करोगे? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा बराबर तुम्हें ऑड मिल गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ इमेजेस तुम्हें कैसे मिलेंगी? देन, ठीक है, देन इसका एक और पार्ट होगा। क्या होगा? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन मिरर्स, सिमेट्रिकली बिटवीन मिरर्स मतलब बीचों बीच, सिमेट्रिकली मतलब बिल्कुल बीचों बीच तुमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस तुम्हें कितनी मिलेंगी? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस का 1, इतनी नंबर ऑफ इमेजेस तुम्हें मिलेंगी। कब मिलेंगी तुम्हें इतनी इमेजेस? जब 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा ऑड मिले एंड जो ऑब्जेक्ट है उसको सिमेट्री पे रखा हुआ है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर बीचों बीच नहीं रखी होगी तो मान लो हमने कहीं पर भी रख दी, फिर एक मिरर के ज्यादा पास रख दी, दूसरे मिरर से थोड़ा सा दूर रख दी, फिर क्या होगा? तब होगा सेकेंड केस। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, ठीक है, बिटवीन मिरर्स। अब यहां देख सकते हो तुम लोग, नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा? (360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, नो -1, ठीक है, यहाँ पे -1 नहीं करेंगे। तो देखो अभी तुम्हें दो केसेस पता चले, एक इवन का केस पता चला, एक ऑड का केस पता चला। इवन के केस में क्या होगा? अगर तुम्हें 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इवन मिल जाए तो तुम उसमें से -1 करके नंबर ऑफ इमेजेस पता कर लोगे। बट व्हाट इफ यू गेट ऑड, तब क्या करोगे? ऑड में तुम्हें दो चीजों में से एक और चीज चेक करनी पड़ेगी। व्हाट इज दैट? कि ऑब्जेक्ट जो है वो बीच में रखा है कि नहीं रखा है। अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिमेट्री पे रखा हुआ है तो यू विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ इमेजेस एज -1, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय -1 बाय थीटा -1, राइट, दैट इज। उसके बाद अगर ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है एसिमेट्रिकली अगर रख दी गई है, बीचों बीच नहीं रखे, एक जगह ज्यादा, एक मिरर के ज्यादा पास रख दिए, दूसरे मिरर के कम पास रख दिए, उस केस में क्या होने वाला है? उस केस में यू विल बी गेटिंग जस्ट 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। उसके अलावा हम -1 नहीं करेंगे, ठीक है, -1 नहीं करेंगे। इसे फटाफट से नोट करो। उसके बाद एक और केस हमारा बचा है, थर्ड केस। चलो अभी हम देखते हैं थर्ड केस इसका, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा? इवन ऑड नहीं होगा, बट यू विल बी गेटिंग अ फ्रैक्शन हेयर। यहाँ पे तुम्हें ना फ्रैक्शन मिलने वाला है, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल बोल सकते हो, ठीक है। सो इफ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इज अ फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये अगर फ्रैक्शन हुआ
तो मतलब डेफिनेट सी बात है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा, जैसे मानो जैसे 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 5.6, ठीक है। तो ये जो 5.6 है अगर मैं मानूँ तो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर ये फ्रैक्शन आ जाए तो देन नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, इंटीजर वैल्यू ऑफ थीटा। अब जैसे चलो मैं तुम्हें एग्जांपल दे देती हूँ, मान लो कि भाई 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा कोई एक फ्रैक्शन आ गया, जैसे लेट्स से इट इज लाइक यू विल बी गेटिंग, ठीक है, ये आ गया है फ्रैक्शन 3/2 आ गया, ठीक है। अब तुमको ये बात पता है कि भाई इस 3/2 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और जब मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा 1.5, राइट, 1.5 मिलेगा ना, तो आई विल बी गेटिंग 1.5। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ इमेजेस कैसे पता करूंगी, देखो इंटीजर वैल्यू ऑफ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, तो मतलब इसकी इंटीजर वैल्यू, और वो कितनी होगी, लेट मी टेल यू दैट, वो कितनी होगी यहाँ पे, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कितना इजी है ये, पेन तो मैं ले रही हूँ लेकिन दूसरे कलर से लेना है, ठीक है। तो देखो ये जो 1 है ना, तुम बस इसको उठाओगे तो मतलब नंबर ऑफ इमेजेस जो होगी ना वो कितनी बन जाएगी, वो 1 बन जाएगी, समझे, तुम्हें क्या मिला 1, ठीक है। अगर मान लो फ्रैक्शन में 1.5 की जगह पे लेट्स से यू आर गेटिंग लाइक लेट्स से, यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है, लेट्स से अगर तुम्हें कितना मिल रहा है 3.45 मिल रहा है, 3.45 तुम्हें नंबर मिल रहा है, ठीक है, इस जगह पे कैलकुलेट करने पे तुम्हें 3.45 नंबर मिल रहा है, तो ये जो 3.45 नंबर मिल रहा है तो उसमें से नंबर ऑफ इमेजेस कैसे पता करोगे, सिर्फ इंटीजर वैल्यू, दैट मीन्स सिर्फ 3, तो मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो जब कभी भी तुम्हें फ्रैक्शन मिले तो पहले तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, और जब डेसिमल मिल जाए तो पॉइंट के बाद की पीछे की चीजें सारी गुम कर दो, बस आगे आगे का नंबर रख लो, ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे यूजेस पढ़ते हैं प्लेन मिरर के। चलो आगे बढ़ते हैं, यूजेस देख लेते हैं। अब देखो प्लेन मिरर तो वैसे तो तुम लोग को ये बात पता है कि भाई हर किसी के घर में प्लेन मिरर तो होता ही होता है, तो मतलब तुम्हें एक तरीके से लुकिंग मिरर में तो तुम हमेशा यूज करते ही करते हो, एक यूज तो तुमको पहले से पता था, है ना, ये देखो एज अ लुकिंग ग्लास, देखने के लिए तो हम यूज करते ही हैं। सेकेंड आप देख सकते हो कि अगर कोई ऑप्टिशियन है, ऑप्टिशियन बोले तो जो आई का चेकअप करता है, ठीक है, तो अगर क्या करता है, जैसे उसे किसी रूम को बड़ा दिखाना है ना, जैसे लेट्स से कई ऐसे प्लेसेस होते हैं जैसे कि एरोबिक्स का प्लेस होता है, ठीक है, जहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर कोई भी किसी भी हॉल को अगर आप बड़ा दिखाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप दिखाना चाहते हो दैट इट इज़ वेरी स्पेशियस, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें पूरी एक दीवार पे बिल्कुल प्लेन मिरर लगा देना चाहिए। इफ यू डू दैट तो पता है तुमको सचमुच में ऐसा अलग इल्यूजन होगा दैट दिस रूम इज मच बिगर दैन द रियल वन, लिटरली, एंड दैट इज अ ट्रिक टू, इसको हम जो भी है वो करते हैं, ठीक है, ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी जो ऑप्टिशियंस होते हैं, अब उनको क्या करना पड़ता है, आई चेकअप कराना पड़ता है, ऑलराइट। तो जैसे हम लोग डिस्टेंस के लिए देखते हैं ना, आप लोग भी गए होंगे आई चेकअप के लिए, तो जब आप आई चेकअप के लिए जाते हैं तो क्या होता है, एक यू कैन से एक बोर्ड टाइप का रहता है, ठीक है, या फिर एक ग्लोइंग बोर्ड रहता है, उसमें से आपको लेटर्स पढ़ने होते हैं, अलग अलग साइजेस के लेटर्स होते हैं, राइट। तो देखो जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करने के लिए, लेट्स से एक ऑप्टिशियन के पास जो है कम डिस्टेंस है, ठीक है, उसके रूम में इतना डिस्टेंस नहीं है कि वो चेकअप के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस को ले सके, ऑलराइट, तो वो क्या कर सकता है, प्लेन मिरर लगा सकता है। प्लेन मिरर लगाने पे जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से 5 मीटर अगर डिस्टेंस है, प्लेन मिरर लगाने पे वो 10 मीटर बन जाएगा, राइट। यू कैन रीड फ्रॉम द इमेज, इमेज से पढ़ सकते हो तुम लोग,
राइट ये ट्रिक्स जो हैं वो यूज हो सकती हैं टू इंक्रीज द लेंथ. एक्चुअली में इंक्रीज नहीं हो रहा है बट इल्यूजन से इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इमेज तो बिल्कुल सेम साइज पे बनती है ना, मतलब और भी पीछे एग्जैक्ट सेम साइज पे, राइट. तो ये फ़ायदा जो है हम उठाते हैं. इवन जब हम बार्बर शॉप पे जाते हैं, ठीक है, तो बार्बर शॉप पे क्या होता है कि भाई सामने मिरर होता है, यू कैन वॉच योर सेल्फ, ठीक है, तुम खुद को देख सकते हो, बट पीछे से क्या डिज़ाइन है तुम्हारे हेयर का, किस तरीके से हेयर कटिंग हुई है, हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, तुम कैसे चेक करोगे. उसके लिए पीछे एक प्लेन मिरर जो है कुछ इस तरीके से लगा के दिखाते हैं. अगर प्लेन मिरर हमने रखा तो यू कैन वॉच योर हेयर फ्रॉम द बैक कि भाई किस तरीके से कटिंग हुई है, ठीक है. ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं. अगर अभी तक तुम यूज नहीं करते आए हो तो डू दैट, इट इज अमेजिंग. ऑलराइट, फिर देखो पैरास्कोप में भी तुम यूज कर सकते हो लाइक दिस. पैरास्कोप में यू कैन सी लाइक दिस. देखो ये जो दीवार है, बच्चा इस दीवार के आर पार नहीं देख पा रहा है, तो इंस्टेड ऑफ इसको आर पार देखने की बजाय इफ ही यूज दिस पैरास्कोप तो ही कैन सी ऑल द थिंग्स बिहाइंड द वॉल, ठीक है. यहीं से ही वो सारी इमेजेस को देख पाता है. तो इस पैरास्कोप के अंदर दो प्लेन मिरर्स होते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे लगे होते हैं, एंड देन यू कैन डेफिनेटली वॉच द थिंग्स बिहाइंड द वॉल, ठीक है. कैलेडोस्कोप भी यूज होता है. कैलेडोस्कोप के अंदर यू कैन गेट द वेराइटी ऑफ आर्ट वर्क, ठीक है, डिजाइंस वगैरह मिलते हैं कैलेडोस्कोप में. सोलर हीटिंग डिवाइसेस में भी हमें क्या करना होता है, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन करवाना होता है सन की रेज का, so we do that by the plane mirror. There are so much uses of plane mirrors in our real life, है ना, कितने सारे uses हैं. All right then, let's move on to the, just a second, let's move on to the spherical mirror, ठीक है. अब देखो अभी तक हमने प्लेन मिरर प्लेन मिरर प्लेन मिरर पढ़ लिया. लेट्स टॉक अबाउट द स्फेरिकल. स्फेरिकल मतलब हल्का सा कर्व होना, ठीक है, मतलब वो अब प्लेन नहीं है, इट इज लाइक अ कर्व्ड मिरर, ठीक है. तो स्फेरिकल मिरर का दूसरा नाम हम कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं, ठीक है. थोड़ा बहुत अंदाजा तुम्हें इस चीज से लग जाएगा इफ यू लुक आउट फ्रॉम दी स्पून. अगर तुम स्पून में देखो तो स्पून के दो होते हैं, यू कैन से दो साइड्स होते हैं, राइट. एक तो इनर कर्व्ड होती है, एक आउटर कर्व्ड होती है, राइट. तो यू कैन गेट दैट. इस तरीके से आपको इमेजेस मिलेंगी, एक सीधी इरेक्ट इमेज मिलेगी, एक इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, ठीक है. तो यू कैन डेफिनेटली गेट दैट. So look out, a mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass is known as the spherical mirror. तो basically spherical mirror जो होता है एक्चुअली में एक ऐसा मिरर होता है जो एक बहुत बड़ी हॉलो ग्लास की बॉल का पार्ट होता है. मतलब हम किस तरीके से स्फेरिकल मिरर को बनाते हैं, लेट मी टेल यू. आई विल बी टेलिंग यू टाइप्स ऑफ इमेज. देखो फर्स्ट वाला है ये कनकेव मिरर है. तो क्या किया, एक बड़ी सी ग्लास की बॉल, हॉलो ग्लास की बॉल ले ली है, ठीक है, एंड यू कट इट लाइक दिस. जैसे तुम ये कट करोगे तो तुम्हें एक पार्ट मिलेगा, एक बाउल शेप का पार्ट मिलेगा, ठीक है. इस बाउल शेप के पार्ट के अगर आउटर कवर को तुम पेंट कर दोगे, ठीक है, अगर तुम आउटर कवर को पेंट कर दोगे तो रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगा इनर वाला, है ना. और जब कभी भी इनर वाला रिफ्लेक्टिंग साइड बन गया तो दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर. ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट वन. ये देखो ये है एक, यू कैन से द ग्लास मिरर, राइट. ये अगेन ग्लास मिरर है. इस बार भी हमने क्या किया, कट किया. कट करने से आपको एक स्मॉल बाउल टाइप का मिलेगा, राइट. ये जो बाउल टाइप का है, अब की बार तुम बाहर से पेंट करने की जगह पे अंदर से पेंट कर दो तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट आउटर बल्ज वाला पार्ट बन जाएगा. यहाँ से लाइट रेज आएंगी, इट विल लाइक स्ट्राइक लाइक दिस, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कन्वेक्स मिरर, ठीक है. इसे हम बोलते हैं कनकेव एंड कन्वेक्स. सो बेसिकली जो मैंने तुम्हें वो बताया था ना कि भाई किस तरीके से मिरर्स को हमने डिफरेंशिएट किया है, क्लासिफाई किया है. स्फेरिकल मिरर्स में दो टाइप्स बताए थे, कनकेव, कन्वेक्स. सो दिस इज कनकेव व्हेन द शाइनिंग पार्ट इज इनर एंड दिस इज कन्वेक्स व्हेन द शाइनिंग पार्ट इज आउटर वन, ठीक है. चलो अभी डेफिनेशंस देख लेते हैं. लाइक दिस यू कैन सी हियर, concave mirror is a spherical mirror whose outer bulge surface is silvered and reflection takes place from the inner hollow cave type surface. तो you can see here light rays, ये जो surface है cave type की, वहाँ से ही actually क्या होने वाला है, reflection होने वाला है. तो लाइट रे जाएगी, टकराने के बाद वापस आ जाएगी लाइक दिस. वो वाला पीछे का पार्ट है, बैक साइड है, वो पेंटेड पार्ट है, ठीक है. तो बाहर बल्ज आउट पार्ट पेंटेड होता है और इनर पार्ट केव टाइप पार्ट कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है. सो दिस इज कनकेव मिरर. लेट्स लुक आउट फॉर दी कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, convex mirror is a spherical mirror whose inner cave type surface is silvered and reflection takes place at the outer convex surface.
तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शाइनिंग सरफेस है वो उधर वाला बल्ज आउट पार्ट है ना, मतलब जहाँ से जो है बाहर की तरफ वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, और जो अंदर वाला पार्ट है वो कैसा है, वो पेंटेड पार्ट है। तो दैट टाइप ऑफ मिरर जो कि बाहर की तरफ आ रहा है, दैट टाइप ऑफ मिरर इज द कन्वेक्स, और जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, दैट टाइप ऑफ मिरर इज कनकेव मिरर, ठीक है। चलो अभी हम कुछ चीजें देख लेते हैं, दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, but let me just you make sure you take screenshot of this photo on your screen. चलो अभी मैं तुम्हें बहुत सारे टर्म्स बताती हूँ। तो पहला टर्म जो तुम्हें पता होना चाहिए दैट इज द पोल, तुम्हें पोल पता होना चाहिए। तो देखो पहले तो तुम यहाँ देखो, पोल पे ध्यान मत दो, अभी तुम यहाँ देखो, ये देखो ये है कनकेव मिरर। तो मैंने यहाँ पे किस तरीके से ड्राइंग जो है यहाँ पे फोटो है वो देखो, ये है एक शाइनिंग सरफेस, यू कैन सी द ब्लैक वन, ब्लैक कलर का जो आउटलाइन आप देख पा रहे हो, दिस इज द शाइनिंग सरफेस, और जो ग्रे वाला आप देख पा रहे हो दिस इज द बैक साइड ऑफ द मिरर, पेंटेड पार्ट, ठीक है। तो देखो ये मिरर जिस हॉलो स्फेयर का पार्ट था उसको मैंने डॉटेड से शो किया है, वो पार्ट यहाँ अभी नहीं है क्योंकि हमने तो कट कर लिया, अभी नहीं है, बट इट इज लाइक कौन से का हिस्सा था, मतलब कौन से स्फेयर का पार्ट था। तो आई हैड मेड अ ड्रॉन, मतलब मैंने नहीं, फोटो में ऐसा है दैट इट इज अ डॉटेड लाइन, ठीक है, डॉटेड जो है आउटर बाउंड्री दिखाई गई है स्फेयर की। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर में ये जो ब्लैक पार्ट है दिस इज द शाइनिंग पार्ट, ग्रे पार्ट इज द पेंटेड पार्ट, एंड यू कैन सी द डॉटेड लाइन्स हियर। डॉटेड लाइन जो तुम देखोगे ना, ये डॉटेड लाइन तुम्हें बता रही है कि भाई ये मिरर कौन से स्फेयर का पार्ट था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अब हम वन बाय वन पता करते हैं। सो फर्स्ट इज द पोल हियर, यू कैन सी द पी पोल हियर, ठीक है, मिरर के ऊपर प्रेजेंट, मिरर के बीचों बीच, यू कैन से द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिरर के ऊपर बीचों बीच जो पॉइंट है दैट इज पोल, यू कैन सी हियर मिड पॉइंट, बीचों बीच, एंड ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये पोल होता है, ठीक है। तो दिस इज लाइक पी पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, दोनों में ही मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पोल, ठीक है। ये मिरर पे लाई करता है और इसे हम कैपिटल P से शो करते हैं, ठीक है। अब देखो अगला सरफेस देखो, नॉट द सरफेस बट नेक्स्ट टर्म दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि ये मिरर जिस स्फेयर का पार्ट था उस स्फेयर का सेंटर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मतलब ये जो स्फेयर जिसका पार्ट ये मिरर था उसका सेंटर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से आप कन्वेक्स में देखो कि ये वाला मिरर जिस स्फेयर का पार्ट था उस स्फेयर का सेंटर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये तुम ध्यान से नोट कर सकते हो कि ये मिरर पे नहीं है, ये मिरर के सामने है। कनकेव मिरर के तो सामने है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कन्वेक्स मिरर के पीछे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही है बात, है ना। अब देख सकते हैं इसे कैपिटल C से शो करते हैं, और ये मिरर का पार्ट नहीं होता है, मतलब ये टर्म होता है रिलेटेड, बट ये मिरर के ऊपर नहीं होता, मिरर का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। चलो अभी हम आगे देखते हैं थर्ड वन, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो मिरर था, ये जिस स्फेयर का पार्ट था उस स्फेयर का रेडियस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगेन कन्वेक्स के लिए भी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ कि भाई वो डिस्टेंस जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, एंड सेकेंड आप ये देख सकते हो कि वो जो स्फेयर था जिसका पार्ट ये मिरर है उस स्फेयर का रेडियस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसे हम कैपिटल R से शो करते हैं, ठीक है। फोर्थ वन देखते हैं, फोर्थ वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सो देखो एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करते हुए जाती है, कैन यू सी दिस ब्लैक लाइन, ये जो ब्लैक लाइन है दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलराइट। नाउ यू कैन सी हियर आल्सो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को जोड़ती हुई जो लाइन जा रही है दैट इज व्हाट, principal axis. So if you want to know the principal axis, always make sure the line joining the pole and the center of curvature on the both hand side, ठीक है, दोनों ही मिरर्स के लिए सेम चीज है, ऑलराइट। चलो फिर हम आगे देखते हैं अपर्चर।
अपर्चर का देखो मतलब क्या होता है कि जो मिरर होता है उसका साइज कितना है, दैट इज अपर्चर, ठीक है। तो यू कैन सी ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट लिखा हुआ है, यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द ए बी पॉइंट इज द साइज ऑफ द मिरर, और यू कैन से डायमीटर ऑफ द मिरर, ठीक है। तो मिरर का डायमीटर जो है, और ये जो मैं बता रही हूँ, दिस इज कॉल्ड द अपर्चर, ठीक है। तो यू कैन से द साइज ऑफ द मिरर, दैट इज अपर्चर, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। और हम लोग जो भी मिरर्स को हॉलो करते हैं, मतलब जो भी मिरर्स को देखते हैं, वो जनरली हम लोग जो है यूज करते हैं अपर्चर के लिए। ऑलराइट, चलो अभी तुम्हें नोट करना है ना, ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सबको नोट कर लो जो मैंने अभी तुम्हें बताया, यही सारे टर्म्स हैं। ऑलराइट, चलो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ दो ऐसे और टर्म्स जो, नहीं तीन ऐसे और तीन टर्म जो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। पहला जो मैं बताना चाहती हूँ दैट इज प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकस से तो तुम्हें समझ में आता है ना कि भाई जब जब हम बोलते हैं भाई फोकस करो, इसका मतलब क्या होता है, मतलब सारा का सारा ध्यान एक ही तरफ होना चाहिए, दैट इज फोकस, राइट। जब हम पढ़ाई के लिए भी फोकस बोलते हैं तो भी यही बोलते हैं, सारा का सारा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस का बिल्कुल यही मतलब है, सारी की सारी लाइट रेज अगर एक जगह एक पॉइंट पर अगर इकट्ठी हो जाएं, फोकस हो जाएं, वो फोकस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू हाउ यू कैन से दैट। कनकेव मिरर के केस में देखो, दिस इज द कनकेव मिरर, सारी की सारी लाइट रेज ऐसे पैरेलल मिरर के ऊपर जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होता है तो सारी की सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पे आके मिल जाती है, फोकस हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। उसी तरीके से कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, सारी की सारी लाइट रेज पैरेलल थी, उनको क्या करवाया, फॉल करवाया, ठीक है। इन सबको पैरेलल फॉल करवाने के बाद क्या हुआ, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई जैसे किसी एक पॉइंट से आ रही थी, ठीक है, जैसे किसी एक पॉइंट से आ रही हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कनकेव के लिए देखो, अ नंबर ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस fall on a concave mirror and the reflected rays meet intersect at a point on the principal axis of the plane mirror। तो मतलब एक पॉइंट पे जाके सारी की सारी मिल गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। बट यहाँ पे एक चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है, देखो क्या, कनकेव मिरर के तो फ्रंट में होता है प्रिंसिपल फोकस, बट कन्वेक्स मिरर के बैक साइड होता है प्रिंसिपल फोकस, ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। देखो कन्वेक्स के लिए देखो, अ नंबर ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन अ कन्वेक्स मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा लगता है प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है, वहां से सारी की सारी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। जैसे प्लेन मिरर में होता था, हम रिफ्लेक्टेड रे को देखते थे और ऐसा लगता था मिरर के अंदर से आ रहा है, बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी की सारी लाइट रेज वहां से अब फैलती भी जाती है, यू नो क्या होता है, यू कैन से क्या होता है, यू कैन से डाइवर्ज होती हैं बहुत सारी, ठीक है। अब चलो देखो, द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल एफ, कैपिटल एफ से हम उसको शो करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थिंग, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है,
इस फोकस की इस पोल से जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। इस पोल की इस फोकस से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल प्लेन देखो क्या होता है, फोकल प्लेन जो होता है दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। फोकल प्लेन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्या करूं, इस फोकस पे, इस प्रिंसिपल फोकस पे एक प्लेन रख दूं परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब एक प्लेन कुछ इस तरीके से रख दूं जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, सो दिस टाइप ऑफ प्लेन इज नोन एज द फोकल प्लेन। ठीक है, उसको हम फोकल प्लेन बोलते हैं। सो मेक श्योर यू नोट दिस डाउन। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। ऑलराइट, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट मी टेल यू अबाउट द इमेज फॉर्मेशन। कैसे इमेजेस बनते हैं, आपको किस तरीके के इमेजेस मिलते हैं। अब आपने प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए कि भाई हमको सेम साइज की इमेज मिलती है, सेम डिस्टेंस होता है, राइट। बट स्फेरिकल मिरर के केस में ऐसा नहीं होता। तुम्हें पता है तुम अलग अलग जो है जगहों पर अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तुम्हें अलग अलग इमेजेस मिलेंगी, कभी छोटी मिलेगी कभी बड़ी मिलेगी। ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू व्हेन एंड हाउ। So we are going to see the image formed by the concave mirror। ठीक है, तो फर्स्ट में देखो ये है हमारा फर्स्ट केस। देखो कितने सारे केसेस हैं, these are the 6 cases of the concave mirror। ठीक है, अब इस पे देखो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। तो भाई हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया। ठीक है, अब देखो इमेज कहाँ मिलती है, फोकस पे, मिरर के फोकस पे इमेज मिलेगी। ठीक है, ये देखो इन्फिनिटी पे रखी, इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी है, इमेज यहाँ मिल रही है, फोकस पे मिल रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। इमेज तुम्हें कहाँ मिल रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे मिल रही है। क्या तुम देख पा रहे हो, बिल्कुल पॉइंट साइज है, तो मतलब हमें कैसी इमेज मिलती है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट के जैसी, बहुत 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 छोटी इमेज मिलती है। और तुम देख पा रहे हो कि ये मिरर के बाहर बन रही है ये इमेज, इसका मतलब ये रियल और इन्वर्टेड है, तो दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट केस। तो जब तुम कभी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे, इन्फिनिटी पे रखने का मतलब बहुत 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 दूर, तो तुम्हें कैसी इमेज मिलेगी, बहुत छोटी इमेज मिलने वाली, बहुत छोटी फोकस पे मिलने वाली है और रियल एंड इन्वर्टेड मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड केस आता है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यू कैन सी, देख पा रहे हो ना, उल्टी बन रही है, ए ऊपर है लेकिन यहाँ देखो ए नीचे है, एरो नीचे, राइट, तो उल्टी इमेज मिल रही है। सो ये जो उल्टी इमेज मिल रही है दैट इज द इन्वर्टेड इमेज, और रियल है क्योंकि मिरर के बाहर बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। ऊपर से तुम देख पा रहे हो इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है और छोटी सी इमेज है, तो हमें छोटी इमेज मिल रही है। कब, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख रहे हैं। हाईली डिमिनिश तो नहीं होगी बट डिमिनिश होगी, छोटी होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दे, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर तुमने रखा तो बिल्कुल सेम टू सेम साइज की इमेज मिलने वाली है, लेकिन रियल इन्वर्टेड मिलने वाली है। ठीक है, इमेज तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिल रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है और सेम साइज मिल रही है, बस इन्वर्टेड है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यू कैन गेट दैट। अब देखो नेक्स्ट वाला, बिटवीन सी एंड एफ, अगर तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट रख दिया, नॉट इमेज, ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो तुम्हें इमेज कहाँ मिल रही है, बहुत दूर, दैट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी के पीछे मिल रही है। ठीक है, तो उल्टी मिल रही है, बड़ी मिल रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है ना, तो बड़ी मिल रही है, तो नाउ यू आर गेटिंग द बिग साइजेस इमेज। तो देखो एनलार्ज्ड इमेज मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, अब क्या करें, अब हम और पास लेके जाते हैं, तो फोकस पे रख दिया अब की बार। नेक्स्ट देखो फोकस पे चले गए है ऑब्जेक्ट,
जब ऑब्जेक्ट फोकस पे चली गई है तो इमेज देखो इन्फिनिटी पे चली गई है, इमेज इन्फिनिटी पे जाके बन रही है और बहुत बड़ी बन रही है, हाईली एनलार्ज बन रही है। सो यू कैन सी इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, हाईली एनलार्ज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। अब एक और आता है, अब एक और केस आता है, वो आता है बिटवीन पी एंड एफ। तो मतलब पी एंड एफ यानी पोलर फोकस के बीच में अगर तुम ऑब्जेक्ट को रख देते हो तो अब की बार तुम्हें कैसी इमेज मिल रही है, बड़ी मिल रही है बट सीधी मिल रही है और इनसाइड द मिरर मिल रही है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही है, ठीक है। तो तुमने एक बात नोटिस की, एक बात वो नोटिस करो कि भाई ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी से पास लेके आ रही थी मिरर के, पहले इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी एंड एफ के बीच में, फिर एफ, फिर और पास, मतलब फोकस और पोल के बीच में। तो इमेज का क्या हुआ, इमेज पहले फोकस पे थी, फिर वो दूर जाती गई, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रही है वैसे वैसे इमेज दूर जाती जा रही है। ये कनेक्शन तुम देख पा रहे हो, क्योंकि इसी के बेसिस पे तुम पूरा टेबल याद कर पाओगे, ठीक है, इसी के बेसिस पे पूरा टेबल याद कर सकते हो तुम। ऑलराइट, चलो, तो इस तरीके से देखो कनकेव मिरर के केस में तुम्हें बहुत छोटी इमेज भी मिलेगी, तुम्हें बहुत बड़ी इमेज भी मिलेगी, तुम्हें सेम साइज की इमेज भी मिलेगी, तुम्हें वर्चुअल भी इमेज मिलेगी, ठीक है। सो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि जब कभी भी तुम्हें क्या करना हो, जब कभी भी तुम्हें कोई बड़ी इमेज चाहिए, यूज द कनकेव मिरर। अब जैसे जो डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, अब उनको क्या करना होता है, डेंटिस्ट को ये देखना होता है, छोटे से एरिया को एनलार्ज करके देखना होता है कि भाई ताकि अच्छे से पता चल सके प्रॉब्लम का, तो उसको क्या यूज करना चाहिए, कनकेव मिरर यूज करना चाहिए। वो क्या कर सकता है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को लाके इमेज बना सकता है बड़ी और वर्चुअल, शीशे के अंदर ही तुम्हें इमेज दिख जाएगी, बड़ी इमेज दिख जाएगी, तो अपना ही प्रॉफिट होगा ना, है ना। अब देखते हैं हम सेकेंड, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब देखो कन्वेक्स मिरर का मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, कन्वेक्स मिरर से हमेशा तुम्हें छोटी इमेज मिलने वाली है, हमेशा। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो फोकस पे बनती है, देखो फोटो से मैं बताती हूँ, इन्फिनिटी पे जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, बट फोकस पे तुम्हें इमेज मिलेगी, यहाँ पे फोकस पे इमेज मिलेगी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब इनसाइड द मिरर, तो यू कैन सी इट इज बैक साइड द मिरर, राइट। सो ये तो तुम्हें मिलेगी हाईली फोकस छोटी इमेज, ठीक है, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सेकेंड केस देखो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, तो मतलब कहीं पर भी रख रहे हो, इन्फिनिटी से लेके पोल तक के बीच में कहीं पे भी रख रहे हो, तो भी यू आर गोइंग टू गेट द डिमिनिश साइज, छोटी इमेज मिल रही है, पोल और फोकस के बीच में मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पता मेन चीज क्या है, तुम्हें हमेशा कन्वेक्स मिरर से छोटी इमेजें मिलेंगी। अब जैसे जो कार्स के साइड व्यू मिरर्स होते हैं, रियर व्यू मिरर्स होते हैं, राइट, तो पीछे का बड़ा इंटायर एरिया छोटे से मिरर में कवर अप होना चाहिए, ताकि जो ड्राइवर है वो देख सके कि भाई पीछे से कोई मतलब जो भी देखना होता है वो देख सके, राइट। बट यहाँ पे मेन चीज क्या है, हमेशा छोटी इमेज चाहिए, हमें बड़े से एरिया की छोटी सी इमेज चाहिए, कौन यूज कर होगा उसकी जगह पे, कन्वेक्स मिरर। सो ये कन्वेक्स मिरर आपको छोटी इमेज देगा। देखो अब आपके पास 3 मिरर्स हैं, प्लेन मिरर आपको सेम साइज इमेज देने वाला है, ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड। तो प्लेन मिरर आपको जो है सेम साइज इमेज देने वाला है, कनकेव मिरर आपको बिग साइज इमेज देने वाला है, एंड कन्वेक्स मिरर आपको स्मॉल साइज इमेज देने वाला है। तो यूज अकॉर्डिंगली ना, तुम्हें जैसी इमेज चाहिए तुम उसके अकॉर्डिंग वो मिरर यूज कर लो, सिंपल है ना। सो इट इज सो गुड, ऑलराइट, सो लेट्स end this chapter right now, ठीक है। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.